there is space for a conventional response under a nuclear overhang. If Pakistan does not stop perpetrating terror against India, there would be punitive cost which will be imposed upon it. No longer would the paradigm of the nuclear shield or nuclear blackmail hold good or restrain India from its response. Osama bin Laden being discovered and neutralized in Abbottabad. He was not found in Allahabad. He was found in Abbottabad. Our delegation started its visit in Qatar, and then we went to South Africa. From South Africa, we went to Ethiopia, and finally, we are culminating the visit in Egypt. So what are the takeaways of the last 10 days? First and foremost, India has been successfully able to tell the story to the world that we have been victims of Pakistan-sponsored terrorism now for 45 years. It is not the unfortunate tragedy in Pahalgam alone, whose fingerprints lead all the way back to Pakistan. But for the past 45 years, be it the attack on the Jammu Kashmir Legislative Assembly, be it the IC-814 hijack, be it the attack on Indian Parliament, be it the attack on Mumbai on the 26th of November 2008, be it the attack on Uri, be it the attack in Pulwama, the litany of Pakistan's crimes is endless. And I think for the first time, this story has been comprehensively and holistically told by our delegation to our interlocutors. Number two, what we have been able to convey to our interlocutors, that there is space for a conventional response under a nuclear overhang. If Pakistan does not stop perpetrating terror against India, there would be punitive cost which will be imposed upon it, and no longer would the paradigm of the nuclear shield or nuclear blackmail hold good or restrain India from its response. Number three, we've been effectively able to convey to our interlocutors that the time has come in order to create a global coalition and a global architecture to proscribe those states which use terror as an instrument of state policy. And Pakistan is the prima donna of those states which has been using terrorism in order to perpetrate a low-intensity conflict against India. And so therefore that story has been very, very effectively told. Number four, we've been able to disabuse the world about this conception that what Pakistan perpetrates into India in the form of terror has nothing to do with Jammu and Kashmir. It has everything to do with the fact that we intervened decisively in 1971 in East Pakistan to stop a genocide which the West Pakistani army was committing against its own people. And the historic surrender which took place when India took 91,000 Pakistani soldiers and officers as prisoners of war has left an institutional scar on the collective psyche of the Pakistani military establishment. And it is because of that institutional sense of humiliation which it has not been able to surmount, it perpetrates a proxy war against India, which is the strategy of trying to bleed India with 1,000 cuts. And so I think we've been very effectively able to convey that what really is the trigger for this Pakistan-sponsored terrorism, which now goes back 4.5 decades. And fifth, finally, what we have been able to tell the world, that the time has come not to make a distinction
between semi-state actors and the state which spawns them. This is a seamless architecture of terror. Therefore, any such distinctions are absolutely useless and non-efficacious. And the greatest evidence of that was Osama bin Laden being discovered and neutralized in Abbottabad. He was not found in Allahabad. He was found in Abbottabad. So a state which could suck money out of the global coalition against terror led by the United States of America and shelter the biggest enemy of the United States of America and someone who's being hunted by the entire world is the greatest testimony to Pakistan's chicanery and doublespeak. So I think these 5 messages have very, very effectively gone across to our interlocutors, and I do hope they will pause, reflect, think about what we have told them, because it is absolutely based upon facts as they stand historically and concurrently. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक देखिए, कतर, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया और अब इजिप्ट में ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन भारत से आया है सांसदों का, ये अलग अलग भाषाओं, अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग दलों, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों का एक स्पष्ट संदेश लेकर आए हैं, दुनिया भर में सच्चाई बताने कि कैसे सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद बार बार भारत के निर्दोष लोगों की जान लेता है। भारत पर बार बार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के हमले होते हैं, जो भारत के आर्थिक विकास को भी एक तरह से प्रहार करने का प्रयास करते हैं, निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, और जो हम लगातार शांति बनाने का काम करते हैं, भाईचारा बनाने का काम करते हैं, सद्भावना का काम करते हैं, उसको बार बार चोट पाकिस्तान द्वारा पहुंचाई जाती है। हमने ये भी दुनिया भर के देशों को बताया कि कैसे फाइनेंस, लॉजिस्टिक हैंडलिंग, ट्रेनिंग और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन सब पे पाकिस्तान किस तरह से शेल्टर करता है, संरक्षण देता है आतंकवादी संगठनों को। और पहलगाम हल्के में जो आतंकवादी संगठन था, द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो भी पाकिस्तान की सरजमीन से चलता है। और कैसे पाकिस्तान के बड़े फौज के अधिकारी उन आतंकवादियों के जो जनाजे थे उसमें भी पहुंचे, जब उनको दफनाने का काम किया गया, और उनके जो शरीर थे उन पर भी, या ताबूत पर भी पाकिस्तान का झंडा था। ये अपने आप में दिखाता है
कि ये मिली भगत है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है और दुनिया भर के देशों में एक संदेश तो स्पष्ट गया, सबने एक स्वर में आतंकवादी हमले की निंदा की है, भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं दी है और अपना विश्वास व्यक्त किया है कि वो भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में खड़े हैं। क्योंकि दुनिया भर के देश मानते हैं आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं, आतंकवाद आतंकवाद होता है जो निर्दोष लोगों की जान लेता है और किसी देश द्वारा प्रायोजित अगर आतंकवाद हो तो लड़ाई कितनी मुश्किल होती है। इसलिए एक ग्लोबल कोएलिशन ऑन टेररिज्म जो है कि सबकी एक जैसी सोच हो, टेररिज्म की परिभाषा सुनिश्चित हो और टेररिज्म के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करें सब देशों को एकजुट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे यूएनएससी की लिस्ट में 52 पाकिस्तान की सरजमीन से चलने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्टों के नाम है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठाता। जब ये सारी बातें सबके सामने आती हैं तो पाकिस्तान का घिनौना और असली चेहरा जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है सबके सामने आता है। अच्छी बात यह है कि हम इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, लीग ऑफ अरब स्टेट्स उनके सेक्रेटरी जनरल से मिले, सांसदों से मिले, सेनेटर से मिले, थिंक टैंक से मिले, फॉर्मर डिप्लोमेट राजदूतों से मिले, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले, पत्रकारों से बातचीत हुई। सब तरफ से एक जैसी आवाज थी कि आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद की निंदा करते हैं और आतंकवाद जड़ से खत्म हो और दुनिया भर में खत्म हो, इसके लिए दुनिया भर के देशों ने सहमति जताई है। जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है जो आतंकवादियों के द्वारा धर्म को एक तरह से हथियार बनाने की, आप लोग जो इन 4 देशों में गए, पूरा प्रतिनिधिमंडल या ज्यादातर वो देश है जो एक तरह से मुस्लिम बहुल देश है, तो आपको लगता है कि क्या वहां से जो एक तरह से समर्थन? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत सारे नेताओं ने अपनी बात में भी कहा, जैसे मैंने पहले कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए किसी एक धर्म के साथ जोड़कर देखा जाए तो उन सब ने भी खुलकर कहा कि ये मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, निर्दोष लोगों के लिए ये एक तरह से बड़ा खतरा है, देशों के लिए खतरा है। और ये सब देशों की एक स्वर में बात थी, जब जब अलग अलग मिले सबने यही कहा कि आतंकवाद के वो खिलाफ है, जो निर्दोष लोगों की जान लेता है, जो किसी देश की शांति पर हमला करता है, उसके खिलाफ हम हैं। लेकिन जो आगे आने वाले दिनों में जो एक तरह से संदेश लेकर जो आप लोग जाएंगे, अलग अलग जो डेलीगेशन जाएगा, इसका क्या एक तरह से कंक्लूजन क्या देखा जाए आने वाले समय में? क्या पाकिस्तान इस पे दबाव बनेगा, पाकिस्तान ऐसी हरकतों से फिर बाहर आ जाए? देखिए, सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल सांसदों का था, उसका एक काम था, सच्चाई दुनिया के सामने रखनी है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देनी है, मित्र देश हैं उन सबको बताना है और अलग अलग, चाहे कोई मंत्री है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी है, जर्नलिस्ट है, आम जनता है या फिर इंडियन डायस्पोरा है, इन सभी को सेंसिटाइज करना है कि सच्चाई क्या है और भारत एक विक्टिम कैसे है पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का। और भारत ने अब जो न्यू डॉक्ट्रिन जो तय की है, जो न्यू नॉर्मल है कि अगर कोई भारत पर वापस हमला आतंकवादी करेगा तो हम कड़ा और स्पष्ट जवाब देंगे और उसी भाषा में देंगे। दूसरा, अगर कोई देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो या आतंकवादी संगठन हो, इसमें हम कोई अलग अलग नहीं देखेंगे, एक ही नजरिए से देखेंगे, क्योंकि दोनों की सोच आतंकवाद को बढ़ावा देने की है। तीसरा, जो न्यूक्लियर पावर के पीछे ये आतंकवादी संगठनों को शरण देकर, प्रशिक्षण देकर और सीमा पार आतंकवाद बढ़ाने का काम जो देश करता है, वो अब ये भी समझ ले कि परमाणु धमकी चलने वाला काम नहीं है। हमें 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और ये स्पष्ट संदेश हमने दुनिया भर के देशों में दिया है। भारत अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए और देश के विकास और शांति के लिए हर वो कदम उठाएगा जो उठाने की जरूरत है। भारत वो ताकत है और हम कभी किसी पर ना अतिक्रमण करते हैं ना आक्रमण करते हैं। हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन हमारी शांति को कोई भंग करेगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे।
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम Jio TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2025 के फाइनल में जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। ये तस्वीरें बेंगलुरु के BGS ग्राउंड की हैं। जहां फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। I'm feeling very happy that we have waited 17 years to achieve this trophy. So you are emotional, you are saying? Yeah, of course. How much happy now you are? We are very happy. After waiting for 17 years, we are very happy. That's not Isala Cup Namde, it's Isala Cup Namdu. I'd like to tell one thing. We're gonna win this cup. This shit, we're gonna win. We expected that we will win. Literally waited for 18 years. We waited for 18 years for this one cup, and we won. I would like to tell my celebration that I want to show each and every Bangalorean celebration what we really mean. This is not a cup. This is winning worldwide. आप देख रहे हैं न्यूज UNI।
Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक And so today what you find is because of all of those years of neglect, because of the loss of industrial capacity, we didn't just undermine our society, we didn't just undermine our domestic economy, we've undermined our position in the world. And what you will find, and what we find even now, is that increasingly on geopolitical issue after geopolitical issue, it is access to raw material and industrial capacity that is at the core both of the decisions that we're making and the areas that we're prioritizing. Now the technologies are different, but nonetheless, that is what we're increasingly prioritizing. And that's become really apparent to me. I think it was even going into this job, but in the months that I've been there, on place after place, every country in the world is now pitching themselves as a source of rare earth minerals. Every country in the world, by the way, they're not that rare, so every country has access to it, but it's become a big, that alone is not enough, because you have to have access to rare earth minerals, but then you have to have the ability to process them, and you have to make them into usable material. And frankly, what the Chinese have done over the last 25 or 30 years is they've cornered the market. And this is one of the true challenges to sort of pure free enterprise view of these things. You cannot compete with a nation state who has decided they're not interested in making money. They're not interested in making money in this field. They are interested in the short term in dominating the market, being the sole source provider for the world of a certain product. Because once you establish industry dominance in any one of these fields, you can charge the world whatever you want. Now, one thing is if we said, well, this happened because they're just better than us. But that's not why it happened. It happened because we literally gave it away. Because we made the decision, we made the policy decision that it was okay. We were okay with 80-something% of the active ingredients in most of our generic pharmaceuticals coming from another country. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक दुनिया भर में सच्चाई बताने कि कैसे सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद बार बार भारत के निर्दोष लोगों की जान लेता है। फाइनेंस, लॉजिस्टिक हैंडलिंग, ट्रेनिंग और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन सब पे पाकिस्तान किस तरह से शेल्टर करता है, संरक्षण देता है आतंकवादी संगठनों को। दुनिया भर के देशों में एक संदेश तो स्पष्ट गया है, सबने एक स्वर में आतंकवादी हमले की निंदा की है, भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं दी है और अपना विश्वास व्यक्त किया है कि वो भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में खड़े हैं। वो एक तरह से समाप्ति की तरफ है, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे पूरे दौरे? देखिए, कतर, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया और अब इजिप्ट में ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन भारत से आया है सांसदों का, ये अलग अलग भाषाओं, अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग दलों, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों का एक स्पष्ट संदेश लेकर आए हैं। दुनिया भर में सच्चाई बताने कि कैसे सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद बार बार भारत के निर्दोष लोगों की जान लेता है। भारत पर बार बार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के हमले होते हैं, जो भारत के आर्थिक विकास को भी एक तरह से प्रहार करने का प्रयास करते हैं, निर्दोष लोगों की जान लेते हैं और जो हम लगातार शांति बनाने का काम करते हैं, भाईचारा बनाने का काम करते हैं, सद्भावना का काम करते हैं, उसको बार बार चोट पाकिस्तान द्वारा पहुंचाई जाती है। हमने ये भी दुनिया भर के देशों को बताया कि कैसे फाइनेंस, लॉजिस्टिक हैंडलिंग, ट्रेनिंग और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन सब पे पाकिस्तान किस तरह से शेल्टर करता है, संरक्षण देता है आतंकवादी संगठनों को। और पहलगाम हल्के में जो आतंकवादी संगठन था, द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो भी पाकिस्तान की सरजमीन से चलता है। और कैसे पाकिस्तान के बड़े फौज के अधिकारी उन आतंकवादियों के जो जनाजे थे उसमें भी पहुंचे, जब उनको दफनाने का काम किया गया, और उनके जो शरीर थे उन पर भी या ताबूत पर भी पाकिस्तान का झंडा था। ये अपने आप में दिखाता है कि मिली भगत है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है और दुनिया भर के देशों में एक संदेश तो स्पष्ट गया है, सबने एक स्वर में आतंकवादी हमले की निंदा की है, भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं दी है और अपना विश्वास व्यक्त किया है कि वो भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में खड़े हैं। क्योंकि दुनिया भर के देश मानते हैं आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं, आतंकवाद आतंकवाद होता है जो निर्दोष लोगों की जान लेता है। और किसी देश द्वारा प्रायोजित अगर आतंकवाद हो तो लड़ाई कितनी मुश्किल होती है। इसलिए एक ग्लोबल कोएलिशन ऑन टेररिज्म जो है कि सबकी एक जैसी सोच हो, टेररिज्म की परिभाषा सुनिश्चित हो और टेररिज्म के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करने सब देशों को एकजुट होना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. News UNI हम Jio TV बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, लहू और खून एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन क्योंकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे की पूरे विश्व को एक फैमिली मानता है, एक परिवार मानता है और विश्व मित्र की भूमिका निभाता है, इसीलिए ये पहचाना गया कि टेररिज्म एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और भारत की ये बहुत स्पष्ट नीति का ही मैसेज लेकर, ये संदेश लेकर 7 डेलीगेशंस अलग अलग दिशाओं में निकले हैं। हमारा डेलीगेशन ग्रुप नंबर 4 था, जो माननीय श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी के कुशल नेतृत्व में 4 देशों के दौरे पर आया था। लेकिन ये टूर नहीं था, ये उद्घोष था भारत के सुदृढ़ संकल्प का। और यूएई सबसे पहला देश था जिसने पहलगांव में जो बारबैरिक अटैक हुआ था उसको कंडेम करा था, कड़ी निंदा करी थी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे दोस्त की भूमिका निभाते हुए हमारे इस आगाज में हुंकार हमारे साथ भरी। उसके बाद हम लोग वेस्ट अफ्रीका आए, जहां पर सिएरा लियोन और DR कॉन्गो आज ही चुनाव में खड़े हो रहे हैं UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए। कल 3 जून तक मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों देश नॉन परमानेंट मेंबर UNSC के बन जाएंगे। सिएरा लियोन अभी नॉन परमानेंट मेंबर UNSC का है। यानी ये तीनों देश जो वेस्ट अफ्रीका के हैं, ये न केवल भारत के पुराने मित्र हैं, हमारे बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशनशिप है इन तीनों देशों के साथ, बल्कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वैश्विक पटल पर। और हम यहाँ पर इनकी यही प्रभाव की शक्ति का आवाहन करने के लिए आए थे। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि हमारा डिप्लोमैटिक मिशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, सफल रहा है। सिएरा लियोन और लाइबेरिया के तो पार्लियामेंट में आपने देखा कि मौन रखा गया पहलगाम के विक्टिम्स की मेमोरी में, और DR कॉन्गो ने भी बहुत कड़े और बहुत अच्छे शब्दों में ये कहा है कि हमारे ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में वो हमारे साथ खड़े हैं। मुझे बहुत ही खुशी है ये कहते हुए कि 140 करोड़ भारतीयों का जो संकल्प है आतंकवाद के खिलाफ, उसका आगाज, उसका उद्घोष अब पूरे विश्व में हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की कमान उठाई है, तब से आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडियन डायस्पोरा का भी सम्मान बढ़ा है और भारत को बहुत सीरियसली लिया जाता है। इसी दौरान आपने ये भी देखा, हमारे दौरे में एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें मिली कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है विश्व में। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का एक अपने आप में बहुत महत्व होता है। और मुझे लगता है ये सारे के सारे वो
देश हैं जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। ये वो देश हैं जिनका साथ हमने कोविड में भी निभाया था, और क्योंकि अब हम वैश्विक पटल में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और जो डिप्लोमेसी एक दशक से मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने करी है, उससे मुझे लग रहा था कि हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके माध्यम से यहाँ के इंडियन डायस्पोरा का धन्यवाद जरूर करना चाहूंगी। जो वात्सल्य उनसे मिला, जो ममत्व उनसे मिला, जो स्नेह उनसे मिला, घर की थोड़ी कम याद आई। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक ऑपरेशन सिंदूर ग्लोबल ओनोट्रीच प्रोग्राम के तहत सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लाइबेरिया के मोनरोविया पहुंचा, जहां उन्होंने लाइबेरिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर पक्ष रखा। उन्होंने लाइबेरिया में भारत के पक्ष को मजबूती से रखते हुए यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले में 26 निर्दोष लोगों का धर्म पूछकर हत्या करने के बाद भारत द्वारा की गई कार्रवाई थी और सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने यह भी साफ किया कि जब पाकिस्तान ने सीमावर्ती रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी की, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और सैन्य उपकरणों को निशाना बनाया। मुझे लगता है कि सभी लीडरशिप से मिलने के बाद हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा उनको समझाने में। वो जानते थे कि भारत किस प्रकार से इस टेररिज्म से लड़ता आ रहा है, भारत किस प्रकार से इतने सालों तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फेस करता आया है और किस प्रकार से टेररिज्म से लड़ते हुए भी भारत चौथी अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ हम गए वहाँ इस टेररिस्ट हमले को, इस एक्ट को कंडेम करने का काम हर एक देश ने किया। सियरा लियोन और लाइबेरिया में तो पार्लियामेंट में मौन रखने का काम भी इन देशों ने किया। मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। भारत ने जिस प्रकार से संबंध इन सभी देशों के साथ बनाए रखे हैं, उसका फायदा आज इस डेलीगेशन को हुआ, इस दौरे के दरमियान हम सभी को हुआ। बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ से मिला, जो आने वाली हमारे पॉलिटिकल लाइफ में, आने वाले लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक अलग अलग पहलू हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं, अलग अलग बातें यहाँ से सीख के जा रहे हैं। बहुत कुछ सीख कर इस टूर से हम जा रहे हैं।
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक